ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਰਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾ ਓੜਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਉਣ ਕੀ ਸੁਧੇ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪਰ ਗੁੜ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰੋ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ
ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਮਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੇ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵਾ ਗਾਮਾ ਗਾਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਬਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੈ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਾ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੁ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ ਕਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾ ਜਾਣੈ ਅੱਗਾ ਗਿਆਨ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਈਆ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਅਪਾਰ ਕੀਤੇ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਉਠ ਜਾਹਿ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਹੇ ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰ ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦਾਂ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ
ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤਦਨੋ ਗਾਵੇ ਜੋ ਤਦ ਪਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਤੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾਇਓ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੋਨ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘੜਤ ਘੜੀਆ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਆ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੋ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਧਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर श्री गुरु जी के दरबार में सारी संगत का स्वागत है आज, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का एक बार फिर हमें इकट्ठा करने के लिए और इस शिव पुराण की जर्नी में हमारा साथ देते हुए और आगे बढ़ते हुए। तो संगत जी, as you all know that we have been reading this chapter 35
जो भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, and we have been continuing this अध्याय for last few readings. और as there are so many shlokas in this adhyay, so this chapter has been divided into different readings so far. तो आज तक until now we have gone through 100 shlokas. तो 100 श्लोक्स जो है हम पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं, और आज हम 101 श्लोक से आगे बढ़ेंगे, एंड पेज नंबर इज 556. और seems like with this reading today we will be concluding this अध्याय. तो आज की सेवा लव अंकल की है, एंड आई विल लेट लव अंकल अनम्यूट हिमसेल्फ. और अंकल आप अपनी सेवा शुरू करें. थैंक यू अंकल. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी. संगत जी, कोई भूल चुक हो तो गुरु जी और संगत जी प्लीज माफ करिएगा. शुरू करते हैं गणेश वंदना और गुरु जी मंत्र से. वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. शुरू करते हैं. श्लोक 101. पूर्ण पुर्ययिता पुण्य सुकुमार सुलोचनः सामगे प्रिय अक्रूर पुण्य कीर्तिर नामे. अर्थात पूर्ण सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा. पुर्ययिता भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले. पुण्य परम पवित्र. सुकुमार सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे. सुलोचन है सुंदर नेत्र वाले. सामगे प्रिय सामगान के प्रेमी. अक्रूर क्रूरता रहित. पुण्य कीर्ति पवित्र कीर्ति वाले. अनामय रोग शोक से रहित. श्लोक. मनोज वस्तीर्थ करो जटिलो जीवितेश्वर जीवितांत करो नित्यो वसुरेता वसुप्रत. अर्थात मनोजव मन के समान वेगशाली. तीर्थ कर तीर्थों के निर्माता. जटिल जटाधारी. जीवितेश्वर सबके प्राणेश्वर. जीवितांत कर प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले. नित्य सनातन. वसुरेता सुवर्ण में वीर्य वाले. वसुप्रद है धन दाता. श्लोक. सदगति है सत्कृति है सिद्धि सजाति है खल कंटक है कलाधरो महाकाल भूत है सत्य परायण. अर्थात सदगति सत्पुरुषों के आश्रय. सत्कृति शुभ कर्म करने वाले. सिद्धि सिद्धि स्वरूप. सजाति है सत्पुरुषों के जन्मदाता. फल कंटक है दुष्टों के लिए कंटक रूप. कलाधर है कलाधारी. महाकाल भूत है महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल. सत्य परायण सत्यनिष्ठ. श्लोक. लोक लावण्य करता च लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवन है शास्ता लोक गूढ़ो महादिव्य. लोक लावण्य करता सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले. लोकोत्तर सुखालय लोकोत्तर सुख के आश्रय. चंद्र संजीवन है शास्ता सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव. लोक गूढ़ है समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक. महादिव्य महेश्वर. श्लोक. लोक बंधुर लोकनाथ है कृतज्ञ कीर्ति भूषण है अनपायोक्षर
कांतः सर्वशस्त्रभृता वरः, अर्थात लोक बंधुर लोकनाथ है, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, कृतज्ञ, उपकार को मानने वाले, कीर्ति भूषण है, उत्तम यश से विभूषित, अनपायोक्षर, विनाश रहित, अविनाशी, कांत है, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, सर्व शस्त्र भृता वरः, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ। श्लोक तेजोमयो द्युतिधरो लोक नाम गृण रणु शुचिस्मत प्रसन्नात्मा दुर्जयो दुरति क्रम, अर्थात तेजोमयो द्युतिधर, तेजस्वी और कांतिमान, लोका नाम ग्रणी, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अणु अत्यंत सूक्ष्म, शुचिस्मत पवित्र मुस्कान वाले, प्रसन्नात्मा हर्ष भरे हृदय वाले, दुर्जय जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है ऐसे, दुरति क्रम है, दुड़त ध्यय। श्लोक ज्योतिमर्यो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वर है, तुम्ब वीणो महाकोपो विशोक है, शोक नाशन है, अर्थात ज्योतिर्मय तेजोमय, जगन्नाथ है विश्वनाथ, निराकार है आकार रहित परमात्मा, जलेश्वर है जल के स्वामी, तुम्ब वीण है तुम्बी की वीणा बजाने वाले, महाकोप है संसार के समय संहार के समय महान क्रोध करने वाले, विशोक है शोक रहित, शोक शासन है शोक नाशन है, शोक का नाश करने वाले। श्लोक त्रिलोकेश सर्वशुद्धि जय, अव्यक्त लक्षणों देवो व्यक्ताव्यक्त को विषामपति है, अर्थात त्रिलोकप है, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिलोकेश है त्रिभुवन के स्वामी, सर्व शुद्धि सबकी शुद्धि करने वाले, अध्युक्षज्ञ इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षणों देव है अव्यक्त लक्षण वाले देवता, व्यक्ताव्यक्त है स्थूल सूक्ष्म रूप, विषामपति है प्रजाओं के पालक। श्लोक वरशीलो वर गुण सारो मान धनो मय, ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गति वर्रे, अर्थात वरशील है श्रेष्ठ स्वभाव वाले, वर गुण है उत्तम गुणों वाले, सार है सार तत्व, मान धन है स्वाभिमान के धनी, मय सुख स्वरूप, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु प्रजापाल है प्रजापालक विष्णु, हंस है सूर्य स्वरूप, हंस गति हंस के समान चाल वाले, वय है गरुड़ पक्षी। श्लोक वेदा विधाता दाता च श्रेष्ठा, हर्ता चतुर्मुख कैलाश शिखरवासी, सर्वावासी सदा गति है, अर्थात वेद्या विधाता धाता, ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, श्रेष्ठा सृष्टि कर्ता, हर्ता संहारकारी, चतुर्मुख चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश शिखरावासी कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वावासी सर्वव्यापी, सदा गति निरंतर गतिशील वायु देवता। श्लोक हिरण्यगर्भो ध्रुव हिरणो भूतपालोथ भूपति है सदयोगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मण प्रिय, अर्थात हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा, द्रोहिण ब्रह्मा, भूतपाल है प्राणियों का पालन करने वाले, भूपति है पृथ्वी के स्वामी, सदयोगी श्रेष्ठ योगी, योग विद्योगी योग विद्या के ज्ञाता योगी, वरद है वर देने वाले, ब्राह्मण प्रिय
ब्राह्मणों के प्रेमी। श्लोक। देव प्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिंतक है, विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धन है। देव प्रियो देवनाथ है, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देवज्ञ देव तत्व के ज्ञाता, देव चिंतक है, देवताओं का विचार करने वाले, विषमाक्ष है, विषम नेत्र वाले, विशालाक्षक है, बड़े बड़े नेत्र वाले, वृषदो वृषवर्धन है, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले। श्लोक। निर्ममो निरणकारो निर्मोहो निरुपद्रवय दर्पाः द्रपदो दृप्तः सुवर्त परिवर्तक है। अर्थात निर्मम ममता रहित, निरहंकार अहंकार शून्य, निर्मोह मोह शून्य, निरुपद्रव है उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्पाः दर्पद दर्प का हनन और खंडन करने वाले, दृप्त है स्वाभिमानी, सुवर्तु परिवर्तक है समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले। श्लोक। सहस्त्रजित सहस्त्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिण भूत भव्य भव्यनाथ प्रभवो भूति नाशन है। अर्थात सहस्त्रजत सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्राची सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्निग्ध प्रकृति दक्षिण है स्नेह युक्त प्रभा स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भव्य भवनाथ है भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, प्रभव है सबकी उत्पत्ति के कारण, भूति नाशन है दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले। श्लोक। अर्थो अनर्थो महाकोश है, परकायक पंडित है, निष्कंटक है, कृतानंदो निव्ययार्जो व्याज मर्दन है। अर्थात अर्थ परम पुरुषार्थ रूप, अनर्थ है प्रयोजन रहित, महाकोश है अनंत धनराशि के स्वामी, परकायक पंडित है पराय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, निष्कंटक है कंटक रहित, कृतानंद है नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, निर्व्याजो व्याज मर्दन है स्वयं कपट रहित होकर दूसरों के कपट को नष्ट करने वाले। श्लोक। सत्ववान सात्विक सत्य कीर्ति स्नेह कृतागम है, अकंपितो गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्म कृत है। सत्ववान सत्व गुण से युक्त, सात्विक सत्यनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, स्नेह कृतागम है जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, अकंपित सुस्थिर, गुणग्राही गुणों का आदर करने वाले, नैकात्मा नैक कर्म कृत अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले। श्लोक। सुप्रीत है सुमुख है सूक्ष्म है सुकरो दक्षिणानिल नंदे स्कंदरो धैर्य प्रकट है प्रीति वर्धन है। अर्थात सुप्रीत है अत्यंत प्रसन्न, सुमुख है सुंदर मुख वाले, सूक्ष्म है स्थूल भाव से रहित, सुकर है सुंदर हाथ वाले, दक्षिणानिल है मलयानिल के समान सुखद, नंदी स्कंदर है नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, धैर्य उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, प्रकट है भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रीति वर्धन है प्रेम बढ़ाने वाले। श्लोक। अपरिचित है सर्वसत्वो गोविंद है, सत्ववाहन है, अधृत है स्वधृत है, सिद्ध है पूत मूर्ति यर शोधन है, अर्थात अपराजित है किसी से परास्त न होने वाले,
सर्व सत्व है, संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु। गोविंद है, गोलोक की प्राप्ति कराने वाले। सत्व वाहन है, स्वत्व स्वरूप धर्ममय वृषभ के वाहन का काम लेने वाले, वृषभ से वाहन का काम लेने वाले। अधृत है, आधार रहित। स्वधृत है, अपने आप में ही स्थित। सिद्ध है, नित्य सिद्ध। पूत मूर्ति, पवित्र शरीर वाले। यशोधन है, सुयश के धनी। श्लोक। वराह श्रेण दृक छड़ी, बलवाने का नायक। श्रुति प्रकाश है, श्रुति मान एक बंधुर नेक कृत है। अर्थात वराह श्रेण दृक छड़ी ही वराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध। बलवान है, शक्तिशाली। एक नायक, अद्वितीय नेता। श्रुति प्रकाश है, वेदों को प्रकाशित करने वाले। श्रुतिमान है, वेद ज्ञान से संपन्न। एक बंधु, सबके एकमात्र सहायक। अनेक कृत है, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले। श्लोक। श्री वत्सल शिवारंभ, शांत भद्र समो यश, भूयशो भूषणो भूतिभूत कृत भूत भावना है। अर्थात श्री वत्सल शिवारंभ है, श्री वत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी। शांत हृदय, शांत एवं मंगल रूप। सम है, सर्वत्र समभाव रखने वाले। यश है, यश स्वरूप। भूयश है, पृथ्वी पर शयन करने वाले। भूषण है, सबको विभूषित करने वाले। भूति है, कल्याण स्वरूप। भृत कृत, प्राणियों की सृष्टि करने वाले। भूत भावन है, भूतों के उत्पादक। श्लोक। अकंपो भक्ति कायस्तु कालः नील लोहित, सत्यव्रत महात्यागी, नित्य शांति परायण है। अकंप है, कंपित न होने वाले। भक्ति काय, भक्ति स्वरूप। काल है, काल नाशक। नील लोहित, नील और लोहित वर्ण वाले। सत्य व्रत महात्यागी, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी। नित्य शांति परायण है, निरंतर शांत। श्लोक। परार्थ वृत्ति वर्दो विरक्तस्तु विशारद है, शुभ है, शुभ करता च शुभ नामा, शुभ स्वयं। अर्थात परार्थ वृत्ति वर्द है, परोपकारी वृत्ति एवं अभीष्ट वरदाता। विरक्त है, वैराग्यवान। विशारद है, विज्ञानवान। शुभ है, शुभ करता, शुभ देने और करने वाले। शुभ नाम, शुभ है, स्वयं। स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी। श्लोक। अनर्थ्यो अगुण साक्षी, हकृता कनक प्रभ, स्वभाव भद्रो मध्यस्थ है, शत्रुघ्नो विघ्न नाशन है। अनर्थित, याचना रहित। अगुण, निर्गुण। साक्षी, अकर्ता, दृष्टा एवं कर्तव्यवित रहित। कनक प्रभ, सुवर्ण के समान कांतिमान। स्वभाव भृत, स्वभावतः कल्याणकारी। मध्यस्थ है, उदासीन। शत्रुघ्न है, शत्रुनाशक। विघ्न नाशन है, विघ्नों का निवारण करने वाले। श्लोक। शिखंडी, कवची, शूली, जटी, मुंडी च कुंडली। अमृत्यु, सर्वदृक् सिंह हस्तो तेजो रामशी मरहामणि। अर्थात शिखंडी, कवची, शूली, मोरपंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले।
जटी मुंडी च कुंडली, जटा मुंड माला और कवच धारण करने वाले। अमृत्यु, मृत्यु रहित। सर्वदिक सिंह, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ। तेजो राशि महामणि, तेज पुंज महामणि, कौस्तुभादि रूप। श्लोक। असंख्यो अप्रमेयात्मा, वीर्यवान वीर्य को विद, वैद्यश्चैव वियोगात्मा, परावर मुनीश्वर। अर्थात असंख्य ययो अप्रमेय आत्मा, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले। वीर्यवान वीर्य को विद, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता। वेद्य जानने योग्य। वियोगात्मा दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले। परावर मुनीश्वर है, भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप। श्लोक। अनुतमो दुराधर्षो, मधुर प्रिय दर्शन है, सुरेश है, शरण सर्व है, शब्द ब्रह्म संता गति है। अनुतमो अर्थात अनुतमो दुराधर्ष, सर्वोत्तम एवं दुर्जय। मधुर प्रिय दर्शन है, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है ऐसे। सुरेश है, देवताओं के ईश्वर। शरणम आश्रयदाता, सर्व सर्वस्वरूप। शब्द ब्रह्म संता गति है, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय। श्लोक। काल पक्ष है, काल काल है, कड़कीड़ी कृत वासुकी है, महेश वासो मही भरता, निष्काल कालड़ो विष खड़लय। अर्थात काल पक्ष है, काल जिनका सहायक है ऐसे। काल काल है, काल के भी काल। कड़कीड़े कृत वासुकी, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले। महेश वास है, महाधनुर्धर। मही भरता पृथ्वी पालक। निष्कलड़क कलंक शून्य। वृष खल है, बंधन रहित। श्लोक। धूमणि स्तरणी धरण्य, सिद्धि साधन, विश्वतः संवृत है, स्तुत्यो वयुढोरस को महाभुजय। अर्थात धूमणि स्तरणी, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भव सागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य। धन्य है, कृत कृत्य है, सिद्धि साधन है, सिद्धि दाता और सिद्धि के साधक। विश्वतः सवृत है, सब ओर से माया द्वारा आवृत है। स्तुत्य, स्तुति के योग्य। वयुढोरस के है, चौड़ी छाती वाले। महाभुज, बड़ी बाह वाले। श्लोक। सर्वयोनि निरातकड़ो, नर नारायण प्रिय, निर्लोपो निष्प्रपंचात्मा, निर्वय रड़गो व्यड़न नाशन है। अर्थात सर्वयोनि सबकी उत्पत्ति के स्थान, निरातक रड़क निर्भय, नर नारायण प्रिय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम। निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच के अतीत स्वरूप वाले। निर्वैराग्य, विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्राकट्य में हेतु। व्यड़ नाशनय, यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण्य का नाश करने वाले। श्लोक। स्तव्य, स्तव प्रिय, स्तोता, व्यास मूर्ति निरंकुश, निर्वद्य मयोपायो, विद्या राशि, रस प्रिय। अर्थात स्तव्य स्तुति के योग्य, स्तव प्रिय
स्तुति के प्रेमी, स्तोता स्तुति करने वाले, व्यास मूर्ति है, व्यास स्वरूप, निरंकुश है, अंकुश रहित स्वतंत्र, निर्वद्यमयोपाय है, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्या राशि है, विद्याओं के सागर, रस प्रिय, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी। श्लोक प्रशांत बुद्धिर शुण संग्रही नित्य सुंदर है, व्ययाग्र ध्रुर्यो धात्रीश शाकल्य है, सर्वरीपति, अर्थात प्रशांत बुद्धि है, शांत बुद्धि वाले, अक्षुण है, शोभ या नाश से रहित, संग्रही, भक्तों का संग्रह करने वाले, नित्य सुंदर है, सतत मनोहर, व्याघ्र धुर्य, व्याघ्र व्याघ्र चर्मधारी, धात्रीश है, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य शाकल्य ऋषि रूप, शबरीपति, रात्रि के स्वामी चंद्रमा रूप। श्लोक परमात्म गुरु दत्त सूरीराश्रित वत्सल है, सोमो रसज्ञो रसदय सर्व सत्वालंबन है, अर्थात परमात्म गुरु दत्त है सूरी, परमात्म तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, आश्रित वत्सल है, शरणागतों पर दया करने वाले, सोम है, उमा सहित, रसज्ञ है, भक्ति रस के ज्ञाता, रसदय, प्रेम रस प्रदान करने वाले, और 1000वां जो नाम विष्णु जी ने पढ़ा, सर्व सत्वालंबन है, समस्त प्राणियों का सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनके पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, अरे सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए यह शस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्रोत का पाठ करेंगे, उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतः प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वह प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है, जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? यही अध्याय 35 और 36 समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो पढ़ने में तो प्लीज क्षमा करिएगा संगत जी। अब हम मंत्र जाप और आरती शुरू करते हैं। थैंक यू। जय गुरु जी।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः
जय गुरु जी की। शिव
संगत जी आरती ले लीजिए प्लीज। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, और बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत का। I think there is no way we can show our gratitude to Guruji, that how grateful we are being part of his Sangat and his Guru Parivar. And we cannot thank him enough to give us the reasons why we are here. And काफी बार हमने संगत में सत्संग में सुना भी है, जब संगत अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि we are blessed and we are chosen. And I think that's so true, that we all are chosen here for this Shiv Puran, जो हफ्ते में 2 बार रीडिंग की जाती है. One thing that caught my attention, अंकल जब रीडिंग कर रहे थे आज, तो जो 1000वां महादेव का जो नाम लिया गया, सर्व सत्वावलंबन, जिसमें उनका नाम बताया गया है समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले. That particular word sahara just stuck my head, or it is so powerful, just that word itself, that we all feel when we are here in front of him. Sahara, I think it feels like, जैसे छोटा बच्चा होता है, चलना सीखता है, लेकिन हमेशा वो आसपास अपने माँ बाप को देखता है, लेकिन उसको सुकून होता है कि माँ बाप साथ में हैं. क्यों? सहारा. छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, लेकिन फिर भी चाहे वो साइकिल चला भी लेता है, लेकिन फिर भी माँ बाप साथ में होते हैं, तो उसको एक विश्वास रहता है कि गिरूंगा नहीं, अगर गिरूंगा तो कोई है सहारा देने के लिए. बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह हमारी जर्नी भी ऐसी. हम भी छोटे बच्चे ही हैं, अनजान है, कुछ पता नहीं है, लेकिन हमेशा इस दरबार में जब हम होते हैं, बीइंग पार्ट ऑफ दिस संगत, वी ऑलवेज फील लाइक कि एक सहारा है, कोई है जो हमेशा हमारे आसपास है. अगर हम डगमगा भी जाएंगे, गिर भी जाएंगे कहीं, कोई है जो सहारा देने के लिए है. तो बहुत बहुत शुक्राना है हमारे महाराज का, जो हमेशा हमें वो स्ट्रेंथ देते हैं, वो एक सहारा देते हैं, ताकि हम इस जर्नी में आगे बढ़े. और वही सहारा है जो हमें आज इस शिव पुराण की जर्नी में यहाँ तक लेके आया है. आई ऑल्सो फील लाइक के शिव पुराण की जो हमने जो स्कूलिंग स्टार्ट करी है, वी आर ऑलमोस्ट लिटिल ओवर द मिड पॉइंट. तो शायद जो ये वाला जो चैप्टर था, इट वाज जस्ट अ टेस्टिंग बाय गुरुजी कि इतनी पढ़ाई कर ली है, तो ये एग्जाम आ गया, अब ये मिड ईयर का थोड़ा डिफिकल्ट है, इस चैप्टर को क्रॉस करो. एंड दैट इज द रीजन वी हैड टू स्प्लिट दिस अध्याय इनटू मेनी पार्ट्स. तो शुक्राना गुरुजी. वी ऑल ट्राइड अवर बेस्ट टू गेट द पासिंग स्कोर, बट हमें पता है पास होना आसान नहीं है, लेकिन आपके दरबार में फेल भी हो जाते तो हमें पता है कि एक सहारा है हमारे पास, जो शायद हमें कहीं ना कहीं पास कर देगा. तो गुरु जी के लिए जितना भी हम कहें कम है. देर इज नो वे वी कैन डिफाइन हिम, देर इज नो वे वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रैटिट्यूड. बट ये जरूर है कि हम भूलनहार हैं, भूल जाते हैं हम हमेशा, दुनियावी कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो बख्शनहार है, वो बख्श देता है और फिर बुला लेता है अपने पास, चाहे वो सत्संग में, चाहे इस दरबार में, चाहे शिव पुराण में. तो ये सब गुरु की लीला है. तो यही गुरु की बख्शीश है, यही सहारा है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरु नहीं भूलता, फिर बुला लेता है हमें. हम गलतियां करते रहते हैं, वो बख्शता रहता है. हम अरदास करते रहते हैं, वो सुनता रहता है.
यही हमारे गुरु की मेहर है, यही रहमत है कि हम भूल जाते हैं, हम कच्चे हैं, हमारी मुट्ठी भी बहुत कच्ची है, मजबूत नहीं है, कमजोर है हम उनका हाथ छूट जाता है हमसे, लेकिन गुरु का हाथ नहीं छोड़ता। गुरु हमेशा पकड़ के रखता है और वही सहारा है। तो सो ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस संगत, सो ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस शिवपुरा जर्नी। गुरु जी बस यही हमें सद्बुद्धि दें, सबको ये घड़ियां बख्शें और हम साथ में जुड़े रहें गुरु जी के साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का, शुक्राना है इस संगत का, शुक्राना अंकल आज की रीडिंग के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कंक्लूड करते हैं आज की रीडिंग, तो आप अनम्यूट करके प्लीज आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।